Hello, everybody. I am here with a new topic today, that is importance of setting boundaries. And a warm welcome to each one of you. Thank you for joining Atulya, Karishma, Jayashree. I am really grateful to you that you decided to take out time. You could be doing anything in the world, but today you decided that you want to learn the most ये important उंगली पकड़ा दो। of setting boundaries. क्योंकि ये बहुत बार स्पेशली it happens with us that in many areas of the life when we want to say no, but eventually we give in and we say yes. And I will take you step by step कि हम yes क्यों बोलते हैं and how we need to learn to say no, but in a polite way. Karishma, can you just mute yourself, please? So, first of all, I would like to, if I have your permission, please, can I just introduce myself? Hello, Jayashree. Hello. Thank you. Thank you. Do I have the permission to introduce myself? As far as I know, few of you here know me already. So, thank you. Thank you. I am Anita Gupta. I am a motivational speaker, life and happiness coach. Recently started with this journey of coaching, but I'm sure that you are all going to love the tips and tricks that I'm going to share today regarding boundary setting. And I would like to tell you about my journey, how it has been with ups and downs. So, I started as a software engineer in my career. Then I quitted it to take care of my daughter. She was 6 years old by then. Till that time, I was working. तो जब वो छोटी थी तब मैं काम कर रही थी. And that was possible. That was also possible because I was the one who chose to do it, and I made it possible with the help of setting boundaries, which I set for myself and the people around me. Although I am from a Marwadi family, a typical Marwadi family wherein girls are like, तुम लोग घर पे रहो, आराम करो, no need to work. And that was like a standard, क्या बोलते हैं, mentality. सबका यही था. It was only me who chose to stand up for myself, because at that time I desperately wanted to work. I did not wanted to stay at home because मैंने बहुत मेहनत से सीडैक किया था, मेरा कॉलेज किया था and all that, and I didn't wanted to waste my study. And somehow when I stood up for myself, I did it. I worked for 4 years, and when I came to Mumbai, again I chose to go on a back seat for my daughter. But that was also the choice that I made. It was not a forced decision. So there also I am proud that if I want, I can set hard boundaries. If I want to stand up for myself, I can do it. If I want to still on my comfort zone to be for people, then that is also my choice. So after that, I decided to quit my career, stayed at home, then again thought that now I want to stand up for myself. Again, I want to live my life. So started exploring the different things. I started with art. I loved it, and I started as an artist. Then with pandemic, everything went haywire in the art field. And self-development was something that I was passionate right from childhood. So I started exploring this field wherein I got the opportunity to learn from home and start doing this for other people's, because when I have worked on myself a little more, I have improved my life, and I believe now I can improve others' life as well with whatever knowledge that I have. I don't say that I am perfect, but yes, I am definitely a work in progress. So let's move ahead with our main topic, guys. So, what are your expectations? Thank you, Jayashree. So, what are your expectations today from this session of boundary setting? Can I know in the chat box, please?
What is it? You want to learn to say no, learn to say no in a polite way, या फिर you want to know कि यार करते कैसे हैं लोगों को ना कैसे बोलते हैं, या फिर it is like being rude when we say no to people. What are your opinion about it? Anybody? Jayashree, Karishma? Yes, learn to say no. Yes, ना कैसे कहते हैं? Okay. Ashra is also saying no. Okay. So basically यहाँ पे ज्यादा लोगों को no कैसे कहना है वो सीखना है. So first of all, let's understand what is boundary. So boundary is basically creating a safe space for ourselves wherein we don't allow the things that are non-negotiable for us. तो जैसे हमारे जब ऐसा रो हाउस या कुछ होता है वहां पे हम लोग ने देखा हुआ एक कंपाउंड होता है, तो हम लोग वो क्यों बनाते हैं? सो दैट कोई एनिमल्स या ऐसे कोई भी अनवांटेड चीजें आके हमारे प्यारे से गार्डन को स्पॉइल ना कर दे, राइट? सो दैट्स व्हाट हमें बाउंड्रीज बनानी है हमारे मेंटल पीस को बचाने के लिए. सो दिस is what boundary is, to create a safe space for us. And what it helps, boundary set करने से हमें कैसे हेल्प मिलती है? यस, हाउ टू स्टैंड अप फॉर, अच्छा यू वांट टू लर्न हाउ टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्फ विदाउट हर्टिंग आवर लव. यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, आई विल कम टू इट. सो या व्हाट आई वाज सेइंग कि हमें बाउंड्री हमारे खुद के लिए सेट करनी है, बिकॉज when we stand up for ourselves, when we make it clear to the people around us कि this is what is non-negotiable for me and this is what I can make it negotiable, but that has to be done in a very very polite way. We have to be firm in our boundaries but not rude. Make it very very clear. आपको ये भी कहना है कि I don't want to do it, तो आपको ऐसे गुस्से से नहीं बोलना है कि I don't want to do it. Nobody will appreciate. You have to be firm. Say, I don't want to do it, but politely after that giving the reason why you don't want to do it. How you feel if you will take that job, what will be your emotion, why are you saying no for it? So let's go step by step what all we have, we will be कवरिंग स्टेप बाय स्टेप क्या आगे हमें कैसे कैसे सिचुएशंस में कैसे कैसे बाउंड्री सेट करनी है. तो राइट नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम लोगों ने बाउंड्री नहीं सेट की तो क्या होता है. सो व्हेन वी व्हेन सपोज ओके टेक एन सिचुएशन ऑल्सो, एक एग्जांपल में एक सिचुएशन ले लेते हैं कि सपोज माय डॉटर वांट्स टू ईट पोहा एंड आई हैव प्रिपेयर्ड इडली टुडे. ओके, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ. ओके, सो नाउ आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इडली, but she is like desperately saying that I want to eat poha, I want to eat poha. Now here if I give in and make poha for her, which maximum of us do out of love, हाँ अगर वो आप दिल से करना चाहते हो दैट इज फाइन, आप जाके कर दो. लेकिन इफ यू डोंट हैव टाइम एंड इफ यू डोंट विश, आपके पास या तो टाइम नहीं है या आपकी मर्जी नहीं है तब ये करने की, and you do it out of love, then that is where you are cheating yourself. Why? Because सबसे important लाइफ में कौन होता है? You yourself. And हम उसी को इग्नोर कर देते हैं. And after that, what happens is we start feeling guilty, we start feeling angry, we start blaming others कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई. So true, Anita. We do so many things. Yes. So हाँ, हम लोग women are like givers, so we do many things out of love, and in that process we start cheating ourselves, and that becomes a
क्या बोलते हैं, ऐसे धीरे 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 करके जो जमा होता जाता है ना, देन इट बिकम्स अ वॉल्केनो एंड वन डे बर्स्ट। तो हमें उस वॉल्केनो को नहीं बनने देना है। वी वॉन्ट टू हैव हैप्पी रिलेशनशिप्स, वी वॉन्ट टू हैव happiness, happy vibes around us. We want to be happy and we want to keep all the around us also happy. तो यहाँ पर what you have to be like, you make it a point कि yes बेटा, I'll surely give you पोहा but not today. तो अगेन वो तो जिद्दी रहते हैं, बच्चों को तो मैनिपुलेट करना आता है, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगी, वट एवर, खाओगी तो पोहा ही खाओगी. नाउ यू हैव टू बी फर्म हियर, बच्चा आज तो इडली ही मिलेगी. बिकॉज explain them, because I am running late, I have this and this work. And kids, if you give them reasons now, they will understand us, because every human has the, क्या बोलते हैं, ability, they are very smart to understand other people's point if we say it in words. अगर आपने बोला नहीं है and you are expecting the other person to understand your emotions, तो भैया गॉड तो कोई नहीं होता है. दैट एबिलिटी इज ओनली विद गॉड, कि जो हमारे दिमाग को पढ़ सके. दैट्स व्हाई यू नीड टू कम्युनिकेट योर रीजंस एंड से, आज नहीं मिलेगा आपको पोहा बट टुमारो श्योरली आई विल मेक इट अ पॉइंट कि कल पोहा बने. आज आप इडली खा लो एंड आई होप यू आर ओके विद इट. आज मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मेरे को फेवर करने के लिए, यू विल ईट इडली टुडे. एंड फिर भी अगर वो लोग टैंट्रम थोक करते हैं तो लेट देम डू इट. इग्नोर, ऐसे इग्नोर. अगर आपने आज पोहा बना दिया, देन माइंड यू वो एक पोहा नहीं होगा, वो हर रोज का टिक 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 चालू हो जाएगा. बट इफ यू मेक इट वेरी क्लियर कि जो बना है वही खाना पड़ेगा और आपको कुछ चाहिए तो यू हैव टू टेल इट इन एडवांस, तो दैट बिकम्स योर बाउंड्री. एंड देन दे नो, ओके मम्मा सुनेगी नहीं, या तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा या तो मुझे जो बनाया है वो खाना पड़ेगा, और जो मुझे खाना है वो मुझे चाहिए तो मुझे एडवांस में मम्मा को बताना पड़ेगा. सो दिस इज वन एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. इसमें तो हम बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर लेते हैं. इधर वी कैन इवन गिव देम अ रिवॉर्ड कि अच्छा बेटा यार आज तू ना इडली खा ले, आई विल गिव यू वन चॉकलेट. तो बच्चे हैप्पीली खा लेंगे, ठीक है मुझे चॉकलेट मिलेगा. और वी कैन सेट अ कॉन्सिक्वेंस कि आज आपने इडली नहीं खाई तो आपका आज टीवी टाइम कट हो जाएगा, या आपका फ्रेंड के साथ आज नीचे जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे, या फिर नेक्स्ट परमिशन जो आपको चाहिए होगी जिस चीज की, किसी चीज के लिए, वो नहीं मिलेगी. तो दीज ऑल हमें हमें पता होता है व्हाट आर द पॉइंटर्स वेयर वी कैन कंट्रोल आवर किड्स. सो दिस इज, मैं किड का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो हमारे कंट्रोल के अंदर है. वी हैव द पावर ओवर देम, तो हम लोग आराम से कॉन्सिक्वेंसेस सेट कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बाउंड्री सेटिंग इज, हम लोग हमारे ऊपर वालों के साथ बाउंड्री सेट करने के लिए हमारे पास उतने पावर्स नहीं होते हैं. सो वी कांट क्रिएट देयर कॉन्सिक्वेंसेस. हम लोग उनके साथ कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करने जाएंगे तो बहुत सारा गड़बड़ हो सकता है. पर हमारे लेवल और हमारे नीचे वालों के साथ कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करने में हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. If you want to create consequences for the other people, you have to raise in your power. जब आपके पास पावर्स होगी तो आप कॉन्सिक्वेंस इजीली क्रिएट कर सकते हैं. So now this was an example that I took. Now let's proceed कि why do we feel कि no हमने बोला तो that means we are not good, we are selfish. Anybody can say in the chat box कि how many of you feel कि no बोला मतलब हम selfish है, हमें yes ही बोलना चाहिए. Or anybody can unmute and say, yeah, Archana, Atulya, Karishma, Jayashri, I'm just waiting for your answers.
ओके, अर्चना इज सेइंग कि हाँ नो बोला तो शी फील्स कि उन्हें सेल्फिश वाला फीलिंग आता है. और हाउ अबाउट अदर्स? Okay, Jayashree is saying, I think what the other person will feel. Okay. And how about how you are going to feel? Karishma is saying sometimes. Okay. So let's check ki is saying no really selfish? Okay. So let us take one example जहां पे it is we versus we. तो यहाँ भी अनीता है और यहाँ भी अनीता है, ठीक है? Okay. Now this Anita is very फर्म, जो हमेशा अपनी बाउंड्री सेट करके रखती है. वो यस बहुत मतलब सोच समझ के बोलती है. शी थिंक्स 100 times बिफोर सेइंग यस, बट इफ शी सेज यस शी विल मेक श्योर दैट शी इज डूइंग इट. एंड यहाँ पे ये हर एक बात के लिए यस 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 यस, बच्चा यस, हस्बैंड यस, बॉस यस 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 टू एवरीथिंग. बट यहाँ पे कौन इग्नोर हो रहा है? शी herself. Atulya, sometimes I say a no, but I will end up doing opposite, which I didn't wish to. ओके, अपोजिट हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर ब्रॉट अप विद द क्या बोलते हैं, विद द मेंटालिटी कि हमें हर एक को यस बोलना चाहिए. दैट इज लाइक ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का एक गुड क्वालिटी कि हम सबको यस बोलेंगे तो ही हम अच्छे हैं. द मोमेंट वी से नो देन वी आर सेल्फिश, विच इज नॉट ट्रू. क्योंकि जब हम किसी और को यस बोल रहे हैं ना, तो हम नो किसको बोल रहे हैं? खुद को. तो दैट इज इट दैट सेल्फिश? हम खुद को नो बोल सकते हैं. वाई हम नहीं इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? We are saying yes to all other important people in our life, and what about us? We are the one who will be staying with us till our last breath. So make it a point. देखो ये वाला बहुत easy नहीं होता है because the way we are brought up by the society, by our parents, कि we should be givers, we should be like saying yes to everybody, we should respect others, तो out of love we should do things. तो इस सारी कंडीशनिंग की वजह से ना हमको लगता है कि नो बोलना इज रॉन्ग. बट ट्रस्ट मी, नो बोलना इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग. सो आई विल गिव यू हियर वन टिप कि कैसे फाइंड आउट करें कि हमने नो बोला है वो सही है या नहीं. सो आस्क योरसेल्फ दैट आफ्टर सेइंग यस and after doing that thing, do you feel inside your heart कि you did justice to yourself? You did not backseat whatever things that you had on your list as a priority. अगर आंसर में अगर कहीं पे भी नो आता है कि आपने जस्टिस खुद के साथ नहीं किया ना, तो देन यू अंडरस्टैंड कि आपने गलत यस बोला है. You are not supposed to say yes when your heart is desperately saying you nahi, you can't do this. You are doing injustice to yourself. वहां पे आपको कैसे नो बोलना है लोगों को इज वही जो मैंने पहले एग्जांपल दिया. Although I started saying no, but people around me have started saying that I am becoming selfish. Yes, ये तो होगा. मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, बट ये होगा. दिस इज बाउंड टू हैपन, क्योंकि आपने दूसरे लोगों का जो हमने स्टार्टिंग से जो हमने चीजें की है, व्हाट वी हैव डन इज हमने ही ये सारा उन लोगों को ट्रेनिंग दिया है कि आई एम अवेलेबल फॉर यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू. तो अल्टीमेटली उनको तो यही लगता है नाउ शी इज सडनली नॉट अवेलेबल. ऐसा क्या हो गया भाई? तो दे हैव दिस ब्रह्मास्त्र कि भैया उसको गिल्टी फील करवा दो अब कि भैया आप तो सेल्फिश हो. दैट इज सो इजी. ये वाला
ब्रह्मास्त्र बच्चों के पास भी होता है। वो तो छोटे होते हैं ना, उनको इतना ज्यादा नहीं पता दुनियादारी। बट दे ऑल्सो नो कि ओके मम्मा, आपने तो ना आज इडली नहीं, आज मुझे पोहा नहीं खिलाया ना, तो आप तो अच्छे मम्मा नहीं हो। ऐसे फटाक से बोल देंगे वो लोग, आप तो अच्छी मम्मा नहीं हो, आप सेल्फिश हो, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मेरा क्या, मुझे तो आज पोहे खाने का मन हो रहा था। So they know how to manipulate you, and all the people around us know how to manipulate you. And this is the tool that they use by terming you as selfish. But again, go inside you and ask yourself, were you really selfish? आपने नहीं बोला, उसके पीछे लॉजिकल रीजन था। एंड अगर आपके हार्ट ने एक बार यस बोल दिया ना कि नहीं, यू वर नॉट सेल्फिश, तो फॉरगेट अबाउट एवरीबडी एल्स कि किसने क्या बोला है। एंड ये आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जब करोगे ना, then people will understand. Now she has become smart enough, she is not going to take this label, ये वाला ब्रह्मास्त्र अब काम नहीं करने वाला है। Because she knows कि ये उसने selfish intention से नहीं किया है, she did it by choosing herself as a priority. तो यहाँ पे ना ये वाला बहुत, दिस इज वेरी कॉमन। ये हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे फर्म होकर, आई ऑलवेज से कि फर्म रहो बट पोलाइट रहो, फर्म रहो बट पोलाइट रहो। क्योंकि हम लोग अगर एंग्री वाले जोन में चले जाएंगे ना, तो वी विल लूज आवर टेम्पर, and that might convey a wrong meaning to other people, and we don't want that to happen. क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ये सब करते क्यों है, बाउंड्री सेट करते क्यों है? ताकि हम पीस में रहे एंड हमारे अराउंड पीस रहे। तो अगर हमें ये सीखना है कि हाउ, मतलब ये सीखना है कि हम लोग एक अच्छी बाउंड्री सेट करके एक पीसफुल लाइफ बना सकते हैं, तो इनिशियली ये सारी चीजें जो भी आती है, ट्राई टू इग्नोर इट फॉर टाइम बिंग। जिसने भी जो भी लेबल दिया है उसको इग्नोर कर दो, एंड दे विल ऑल्सो नोटिस, यार इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हम इतना इसे सुना रहे फिर भी इसे फर्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज इनसाइड योर हार्ट यू नो यू डिड नथिंग रॉन्ग, नथिंग सेल्फिश। क्योंकि हमें हमारी चीजों को भी प्रायोरिटाइज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। वी कांट बी गिविंग अदर्स फ्रॉम एन एम्प्टी कप। हम खुद एम्प्टी हो जाएं एंड उसमें से सब कुछ देते रहें, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? You will become angry, you will become frustrated, you will be stressed, you will be going in depression, and who will be suffering? आप तो करोगे करोगे, आपके आसपास वाले भी करेंगे, because your vibes will definitely affect them. आप सैड हो तो वो लोग के ऊपर ही गुस्सा निकलेगा, वो लोग के ऊपर ही एंगर, ये सारी चीजों का असर होगा। Okay, so that means if the other person say no to us, he or she also has also set the boundaries for us. Yes, हमें हमें भी नो सुनने मिल सकता है, डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं है ना कि हम ही सिर्फ बाउंड्री सेट कर सकते हैं, सामने वाला भी सेट कर सकता है। सामने वाला भी ऐसे किसी रूम में गया होगा, उसने भी सीखा होगा कि बाउंड्री सेट किए जा सकते हैं। और नहीं भी गया होगा तो इट्स लाइक नाउ अंडरस्टूड कि अगर हमारी बाउंड्री है तो सामने वाले की भी बाउंड्री हो सकती है। तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन कि उसने अगर ना बोला है तो क्यों बोला है। एंड इफ वी कांट अंडरस्टैंड, वी कैन डायरेक्टली गो एंड आस्क व्हाई डिड यू से नो। क्योंकि बहुत सारी चीजें ना कम्युनिकेट करने से सॉल्व हो जाती है। इफ वी आस्क देम एंड वी गेट अ वैलिड आंसर, वी विल अंडरस्टैंड, अच्छा उसने इसलिए नो बोला था। एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग वंस इट गेट्स क्लियर्ड, हमें भी लगता है हाँ यार उसने ना बोला, ठीक है अगले बार देखते हैं। सो यहाँ पे व्हाट आई विल एडवाइस कि हमेशा जब भी आप बाउंड्री सेट करो एंड आपको लगे कि आपने सामने वाले, मतलब आपको ये वाला फीडबैक मिले कि यू आर सेल्फिश,
एंड देन यू नो कि वो आपने किस लिए किया एंड यू आर राइट, तो उसको आपको इफेक्ट मत करने दो, अंदर से बिल्कुल इफेक्ट मत करने दो, बिकॉज इनिशियली इट विल बी वेरी 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 टफ, क्योंकि हम इतने सालों से जिस कंडीशनिंग के साथ जीते आ रहे हैं ना, इतना जल्दी भी, इतना आसानी से भी हम लोग बाउंड्री सेट करना नहीं सीखते। वो हमें खुद, एक तो पहले तो हमें खुद के गिल्ट से लड़ना होता है, क्योंकि हमने हमारे लिए हम हमारे लिए खड़े हुए हैं, एंड देन दूसरों से, दूसरों के जो लेबलिंग मिलता है उससे भी हमें लड़ना पड़ता है। तो स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल बाउंड्रीज, छोटी छोटी से चालू करो एंड देन गो फॉर द बिगर वंस। In this process what will happen is you will train people around you कि how you want to be treated। हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला ऐसे बोल के चला गया, वैसे बोल के चला गया, why? Because you gave them the power। आपने उनको पावर दे दिया कि ओके, आई एम फाइन विद वॉट एवर यू आर सेइंग, आई एम ओके विद वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू डू। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एक बार when you say no politely but firmly, the next time the person will think twice before asking to you। वो फिर पहले की तरह उन्हें पता होगा कि यार ये ना भी बोल सकती है, तो वो सोच समझ के आपसे वो चीज मांगेगा। सो हियर वी हैव टू स्टैंड इन अवर पावर टू से नो। कि मैं ना बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज नहीं होगी। मेक इट लाइक अ गुड गिल्ट। कि व्हाट इज गुड गिल्ट एंड व्हाट इज बैड गिल्ट। देखो, गुड गिल्ट इज जहां पे आपको भी लगता है कि यार नहीं, ये मैंने गलत किया, तो व्हाट यू डू, यू कंपनसेट इट विथ समथिंग एल्स। जैसे मैंने वो चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था कि ठीक है, आज तुमको मेरी वजह से इडली खानी पड़ी, बट आई गेव यू समथिंग एल्स, एक चॉकलेट दिया जो तुम्हें पसंद है, तो आई कंपनसेटेड इट विथ समथिंग एल्स। तो दैट वे वी आर बैलेंसिंग अवर गिल्ट। तो वी कैन यूज दिस थिंग एज वेल, कि जहां पे हम लोग सामने वाले को ये ऑप्शन देते हैं कि अच्छा मैं ये नहीं कर पा रही हूं, बट ओके, टेल मी कि व्हाट आर द अदर वेज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट अदर वेज वी कैन वर्क इट आउट। देन द अदर पर्सन विल ऑल्सो फील इम्पोर्टेंट, क्योंकि शी इज नॉट जस्ट सिंपली सेइंग नो, शी इज आस्किंग कि what are the other ways where we can make it work। that way it will be a win-win situation for both, जहां पे दोनों को लगेगा कि मैं भी जीती हूँ और मैं भी जीता हूँ, एंड नॉट दैट ऐसे क्लैश वाला, टशन वाला। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टिल नाउ कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, why it is important to set boundaries and how we need to set them. If you have any questions, please unmute and ask or drop in the chat box. I'll be happy to answer and then we will move forward. Jayashree is saying crystal clear. So Jayashree, you are all set to set the boundaries. Ashna is also saying yes. Any questions? Any questions? किसी को कुछ questions पूछने हैं? Atulya is saying great. For setting boundaries, these two things are very important. One is either we decide the consequences or either we do it like उसकी जगह हम लोग रिवॉर्ड, मतलब उस गुड गिल्ट वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो वाला। तो कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग, मैंने पहले ही बताया, जैसे हमारे लेवल या हमारे नीचे वालों से इजीली हम लोग सेट कर सकते हैं, बिकॉज देयर वी हैव द पावर। अदरवाइज फॉर अपर लेवल वी कैन सेट अ रिवॉर्ड। बाकी सबके लिए भी रिवॉर्ड कर सकते हैं, पर अपर लेवल वालों के लिए रिवॉर्ड कर सकते हैं। सो जब भी आप अपनी बाउंड्री सेट करो ना, रिमेंबर दिस वेरी फर्मली कि अगर आपने एक बार कोई चीज बोल दी, मेक श्योर दैट यू डू इट। If you start taking
your boundary for granted, believe me, the other person will never take it seriously. उन्हें लगेगा यार ये बनाती है बाउंड्रीज, बट ये खुद ही इतनी क्या बोलते हैं लीनियंट है कि शी इज ओके, ब्रेक भी किया तो क्या फर्क पड़ता है. तो टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर माई डॉटर, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट द कॉन्सिक्वेंसेस, वॉट आई से कि ओके, आज आपको इतना ये चीज करनी है, वट एवर इट कैन बी, हाउस होल्ड चोर, एक छोटा सा काम हो सकता है, कुछ भी. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, छोटा सा काम हो सकता है कुछ भी. इफ यू डोंट डू योर मोबाइल, क्योंकि आजकल बच्चों के पास वो, एक हमारे पास एक एडवांटेज है कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता, तो दे फील वेरी ये उन्हें बहुत वो एक चीज है जिससे हम उन लोग को राइट नाउ कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ माई डॉटर इज अ टीनेजर, तो आई फील कि मेरे लिए वो एक अच्छा एक वेपन है यूज करने के लिए. सो आई से कि यू विल नॉट गेट योर मोबाइल फॉर 5 hours 6 hours वॉट एवर, या फिर एक 12 घंटे के लिए भी जा सकता है. सो इनिशियली शी वाज लाइक ओके ठीक है, मम्मा तो बोलेगी, ऐसे कुछ करेगी तो नहीं, आई नॉट, मतलब जो बोल रही है वो छोड़ो, नहीं करती हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो करते रहती हूँ, शी विल इग्नोर लाइक दैट. एंड देन वन डे I told her firmly, see, today I am very serious. And I just looked into her eyes and said, today I am very serious. If you don't do this, your mobile I am going to take for 24 hours. And she was like, नहीं लेगी, नहीं लेगी. That day, I took, वो उसने नहीं किया वो काम. I took her mobile and then I hided it not anywhere in the house. मैंने वो नीचे जाके मेरी एक्टिवा में छुपा दिया, because I know वो याद तो ढूंढ लेगी. तो मैंने एक्टिवा में जाके छुपा दिया. And now वो इतना मुझसे क्या बोलते हैं, शी इज आर्ग्यूइंग विद मी, मुझे दो, मुझे दो, मुझे स्कूल का ये काम करना है, वो काम करना है, वो वाला असाइनमेंट है, ये वो है. मैंने कहा नहीं मिलेगा. इफ यू हैड ऑल दिस थिंग्स टू बी डन, ये तुम्हें तब ही करनी थी, नॉट नाउ. पहले क्यों नहीं सोचा? आई हैव गिवन यू सफिशिएंट टाइम. मैंने तुम्हें आधा घंटा दिया था, या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट टाइम, बट मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया था, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि मेरा मोबाइल जाएगा तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. एंड she locked her room, she made tantrums, this and that. After 1 hour she came out and I was also feeling bad from inside. एक बार तो लगा माँ वाली फीलिंग, दे देती हूँ यार, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है. बट मैंने कहा नहीं, अगर आज मैंने उसे दे दिया तो शी विल नॉट लर्न कि मेरे वर्ड्स को रिस्पेक्ट करे. सो दैट डे आई टोल्ड, अब जो भी करना है डू इट आइदर विद माई मोबाइल और टेक दिस लैपटॉप, फाइंड योर असाइनमेंट्स, डू इट, बट यू आर नॉट गेटिंग इट. शी पापा आए तब उसने पापा से कंप्लेन की, पापा मम्मा मुझे मोबाइल नहीं दे रही है, ये वो है. I said nothing is going to work. Even if your dad asks me to give, I'm not going to give you. पापा की तो परियां होती है बेटी. तो ही आस्क्ड मी कि दे दो उसे, भाई दे दो, क्या उसको असाइनमेंट असाइनमेंट करना है. आई सेड अब मैंने तो बोल दिया है, अब मैंने तो कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, आप भी बोलोगे तो मिलने तो नहीं वाला है. ओके, नाउ शी थॉट अब तो सारे उसके जो भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब चले गए हैं. उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, ये किया वो किया. एंड शी यूज हर, क्या बोलते हैं, मैजिक वेंड, पापा, वो भी नहीं चला. नाउ शी हैज नो ऑप्शन बट टू यूज द लैपटॉप फॉर her स्कूल वर्क एंड रिमेनिंग थिंग. उसको ऐसे जो भी करना था वो, दे आर सो मच एडिक्टेड टू, 5 मिनट चल जाए तो उनको लगता है जान निकल गई, लाइक दैट. सो शी अंडरस्टूड कि अब अगर मम्मा कुछ बोलेगी तो आई हैव टू डू इट. And that from that day onwards started working. Believe me, started working. मुझे बुरा लग रहा था उस दिन कि उसका सैड फेस देख के, उसके वो ऐसे इमोशनली अपसेट देख के. बट व्हेन आई स्टूड इन माय पावर एंड आई मेड इट क्लियर कि मैंने जो बोला है वो होगा. So you make sure कि you start respecting my words. So this is one example how we have to set clear boundaries with our power and not given.
जब हमने वो चीज बना ली है कि दिस इज नॉट नेगोशिएबल, मीन्स इट इज नॉट नेगोशिएबल। एंड उसे बनाने के लिए थिंक मल्टीपल टाइम्स कि अच्छा ये ओके ओके टाइप्स वाली बाउंड्री है या फिर ये सच में एक नॉन नेगोशिएबल बाउंड्री है। बनाने से पहले 100 बार सोचो, बना लिया उसके बाद बस वो वाला है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। मेक इट लाइक दैट, तो ही फिर आपकी बाउंड्रीज काम करेगी। सो आई होप आई मेड दिस क्लियर कि बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। Anybody, any feedback? Got it? Karishma is saying hearts, so she got it. Very clear. How about Jayashree? Okay, you explained very nicely with good example. Okay, so everybody has got the point ki how we are supposed to set boundaries, but not just boundaries, strong and firm boundaries. एंड नाउ लेट मी टेल यू कि बाउंड्री सेट करने से अल्टीमेटली क्या होगा। ओके, सो अब हमें पता चल गया कि बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। नाउ दिस विल प्रोटेक्ट योर पीस। कैसे? सामने वाले को पता होगा कि इसने जो बोला है शी इज गोइंग टू डू इट। दैट मीन्स वहां से आर्ग्यूमेंट जो आते थे, एक बार दो बार तीन बार आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वो थोड़े टाइम चलेंगे जब तक कि सामने वाले को क्लियर नहीं होता कि ये वाली सुनने नहीं वाली है। तो फिर जब वो एक बार आपने ट्रेन कर दिया आपके आसपास वाले लोगों को कि when she has said something she'll make sure that she'll do it, तो इसकी वजह से जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होते थे ना वो सारे चले जाएंगे एंड दैट विल गिव यू पीस। ओके, एंड उस पीस की वजह से यू आर रिस्पेक्टिंग योर वर्ड्स। यू विल हैव दैट थिंग कि आज मैंने ये बोला है तो ये मैंने किया। दैट मीन्स यू आर सेंडिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन ऑल्सो कि वॉट शी सेज शी डज। Despite the story with kids, sooner or later they will somehow understand the reason. सॉरी अतुल, आई डेंट गॉट योर पॉइंट। किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो? आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डील विद एडल्ट्स। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। हाँ, एडल्ट्स के केस में वहां मैंने कहा ना कि हमारे पास इतने पावर्स नहीं होते हैं, तो उस केस में भी द ओनली थिंग दैट विल वर्क इज बीइंग फर्म बट पोलाइट। ये मैं बार बार रिपीट करूंगी कि फर्म रहो लेकिन पोलाइट रहो, फर्म रखो लेकिन पोलाइट रहो। हियर आई विल गिव यू नाउ माय एग्जांपल ओनली कि व्हेन आई क्विट, मैंने जब मेरा जॉब क्विट किया था बिफोर फॉर मैटरनिटी ब्रेक, उसके बाद मुझे वापस जाना था एंड दैट टाइम माय डॉटर वाज 2 years। दैट टाइम everyone in my family didn't wanted me to join back. इवन माई हस्बैंड वॉज ओके, अच्छा तुझे कहीं पे ऑफर लेटर मिलेगा इतने ब्रेक के बाद तो ठीक है देखेंगे, वेरी कैजुअल एटीट्यूड। ही ऑल्सो डिडंट वांटेड मी टू वर्क, बट वहां पे आई आई न्यू कि इतने सारे सब बड़े लोग हैं, इन लोग की बात मुझे माननी चाहिए। अगर वो लोग इतना सब बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। बट माई सोल वॉज क्रेविंग टू वर्क। आई डेंट वॉन्टेड माई स्टडीज टू गो लाइक दिस वेस्ट। वहां पे मैंने क्या किया? आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ, आई सेट माई बाउंड्रीज, कुछ भी हो मैं तो काम करूंगी। सेम पेज अर्चना इज या सो दैट टाइम वहां पे बहुत सारा रेजिस्टेंस आया, सब लोगों की तरफ से बहुत सारा रेजिस्टेंस आया। वाई शी इज नॉट लिसनिंग, वाई शी वॉन्ट टू डू। बट वेन आई स्टार्टेड एंड इनिशियली जब एक दो महीने निकल गए और एक दो साल निकल गए, तभी उनको लगा कि okay, she is able to manage everything, she is happy, so she is able to take better care of her daughter. And being a mother, we never wish anything ill for our kids. So tab bhi whatever I did was best, taking the best decision of my life कि I don't
क्या बोलते हैं, आई डोंट डू इनजस्टिस टू माई सेल्फ एज वेल एज माई डॉटर. And when kids grow up, nowadays kids are very understanding. They will never say कि आपने जॉब क्यों किया. They will understand now because अब उन्होंने ऐसा ही कल्चर देखा है कि how people are working. क्यों आज के जमाने में अपने लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है. तो जब उन लोग की अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाती है, तभी वो लोग आपको बिल्कुल भी ऐसे ब्लेम नहीं करेंगे कि क्यों मैं छोटी थी तब आपने मुझे गरम रोटी नहीं दी, या क्यों आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी. एंड ये वाला क्वेश्चन मैं मेरे सारे फ्रेंड्स कोलीग्स से पूछती थी जिनकी मॉम्स वर्किंग थी, बिकॉज माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ. सो आई यूज्ड टू आस्क देम, अच्छा तुम्हें आज की तारीख में कैसा लगता है जब तुम्हारी मम्मी अवेलेबल नहीं थी, जस्ट टू वैलिडेट माई सेल्फ कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि बाकी तो सब लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. इट इज ओनली मी हु इज डूइंग दिस. तो आई वॉज फीलिंग गिल्टी इन साइड, बट आई वॉन्टेड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. दोनों चीजें थी. तो दैट्स वाई आई नीडेड वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड. बट आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछो कि डिड आई टुक द राइट डिसीजन, आई विल से यस, आई टुक द राइट डिसीजन. I stood up for myself and I'm proud of it कि I stood up for myself. And I delivered quality over quantity to my daughter in those days. जितने टाइम मैं उसके साथ होती थी मैं उसके साथ होती थी 100%. नो टीवी नो मोबाइल, आई वॉज ओनली विद हर जितने टाइम के लिए हूँ. एंड जब नहीं होती थी तब तो ऑब्वियसली नहीं होती थी. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस आएंगे स्पेशली अपर लेवल से, क्योंकि दे हैव द पावर ओवर यू. दे विल मेक यू फील गिल्टी. बट अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है ना, तो अल्टीमेटली दे हैव टू गिव इन. अच्छा इसने, ठीक है, वो इनिशियली नहीं समझेंगे, इनिशियली तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा. इनिशियली तो इवन माय पेरेंट्स वर सेइंग कि पता नहीं क्या है तेरे को इतना भूत है कि बच्चे को छोड़ के जा रही है तू. इतने छोटे से बच्चे को कौन छोड़ के जाता है, व्हाई डू यू वांट टू डू, लाइफ पड़ी है ये सब करने के लिए, पूरा दुनिया भर का ज्ञान ज्ञान ज्ञान. जहां सिर्फ मैंने मेरे दिल की सुनी. आई वॉन्ट टू डू एंड दैट्स इट. एंड क्योंकि मैंने वो डिसीजन लिया था, फॉर दैट आई बिकेम मोर कैरिंग एंड मोर कॉन्शियस ऑफ माई टाइम टूवर्ड्स माई डॉटर. और अगर मैं ऐसे उसके बाद वाला टाइम देखूं जब मैंने बैक सीट पे गई हूँ, नाउ आई नो कि उतना क्वालिटी टाइम मैंने नहीं स्पेंड किया जितना मैंने उन दिनों में स्पेंड किया. सेम ज्ञान अर्चना इज ऑल्सो सेम. सो बेसिकली आई वांट टू टेल कि आप ना 100 बार सोचो एक बाउंड्री बनाने से पहले कि इज इट राइट और रॉन्ग. आप एंड वो आपको खुद तो पता ही चल जाएगी डेफिनेटली. इफ यू इट गिव्स यू हैप्पीनेस मीन्स इट्स राइट. इफ इट डिस्टर्ब्स यू फ्रॉम इनसाइड देन इट इज रॉन्ग. आप कुछ गलत कर रहे हो अपने खुद के साथ. दूसरों के साथ भले ही जस्टिस कर रहे होंगे, खुद के साथ गलत कर रहे हो. बट खुद के साथ गलत करने में प्रॉब्लम कहाँ आएगी पता है? लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगी जब आपको लगेगा कि आई हैव जस्ट गिवन 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 और मैं आज एम्प्टी हो गई हूँ. देन यू विल फील, क्या बोलते, एकदम ग्राउंड लेवल पे चले जाओगे. एंड आई हैव सीन लाइक दिस लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आज की तारीख में भी. दे से मी कि यार हमने तब क्यों नहीं खड़े हुए हम हमारे लिए. नाउ वी आर फीलिंग कि वी वेस्टेड दिस मैनी इयर्स. सो it's very important to realize the value of our heart, our desires, our heart also. आप बाकियों को यस बोलते तो खुद को भी तो यस बोलना सीखो यार. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिजर्व योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू प्रिजर्व योर सेल्फ एस्टीम. जब हम लोग दूसरों को यस बोलते हैं और हम खुद को ना बोलते हैं, दैट मीन्स हमने हमारी खुद की प्रायोरिटी को बैक सीट पे डाल दिया है.
और जब हम खुद ही हमारे को यस नहीं बोल सकते, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग अदर्स टू टेल यस टू अस? नहीं करेंगे ना। जब हम ही खुद को नहीं प्रायोरिटी दे रहे, दूसरे लोग कैसे देंगे? तो फर्स्ट स्टार्ट गिविंग प्रायोरिटी टू योरसेल्फ, and then eventually people will also start prioritizing you. Any questions, guys? Now I am open for questions. If you are facing anything, if you want to get answers of anything, if you have any situation जहाँ पे आपको no बोलना है, but you are struggling to say no, just put in the chat box or unmute and ask. Karishma, Archana, Atulya, Jayashree. Archana is saying fantastic session. Thank you, thank you. Yeah, anybody anywhere where you are now also feeling कि अभी भी आप ना नहीं बोल पाओगे? Everybody has this had this question कि हम लोग ना नहीं बोल सकते. Did you get the correct way of saying no? Eye opener session, very systematic, superb session. Okay, so I I'm getting the feeling कि मैंने communicate कर दिया है कि कैसे बाउंड्री सेट करनी है in the right way. And these boundaries are for our safety, our safe space, our peace, our happiness, and ultimately which will be creating क्या बोलते हैं रिपल इफेक्ट ऑन आवर फैमिली, ऑन आवर फ्रेंड्स, ऑन आवर सराउंडिंग, जो भी हमसे कनेक्टेड है उन सब पे उसका रिपल इफेक्ट होगा, बिकॉज वी विल बी हैप्पी. जब हम खुश होते हैं ना, हम सारी चीजें फिर दिल से करते हैं. जब हमारे अंदर रिसेंटमेंट होता है ना, हमने सामने वाले को यस बोला होगा लेकिन हमारे अंदर रिसेंटमेंट होगा ना, तो वी विल डू इट, बट अंदर से हम लोग क्या बोलते हैं खाली होते जा रहे होंगे. सो वी डोंट वांट टू एम्प्टी आवरसेल्फ, वी वांट टू fill ourselves and then give, fill give, ताकि वो खाली ना हो. Got it? Yes, Arsha is saying yes, true, true, true. क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. See, take an example of our breath. Can we just breathe out, breathe out, breathe out, breathe out, देते रहे एनवायरमेंट में, अंदर नहीं ले, ऑक्सीजन नहीं ले, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देते रहे? नो, वी हैव टू बैलेंस इट. ऑक्सीजन लेनी है यानी अपने आप को भरना है, एंड देन वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से गिव आउट करनी है. सो से यस टू योरसेल्फ, फिल योरसेल्फ, एंड देन सेम वे सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट व्हाई इज शी सेइंग समथिंग, एंड इफ शी इज सेइंग समथिंग, शी इज वेरी मच in her own power to make it true. So please don't, it's like putting a label, please don't take me for granted. अगर मैंने कुछ बोला है तो मैं करूंगी. Now you don't have the option of taking me for granted. फिर आप मुझ पे गिल्ट नहीं यूज कर सकते, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं यूज कर सकते, कोई लेबल्स नहीं यूज कर सकते. पहले ब्रेथ इन करेंगे तो ही ब्रेथ आउट कर पाएंगे. एग्जैक्टली. So guys, I want you all to use it, whatever that you have learned today in your life, and start from छोटी छोटी चीजें. हाँ, डायरेक्टली बड़ा करने जाओगे तो बहुत खुद को भी मनाना बहुत डिफिकल्ट होता है. बिलीव मी, जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया था ना, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी. आई यूज टू क्राई. मैं खुद रोती थी कि मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया है सब लोगों के अगेंस्ट जाके. बट इवेंचुअली व्हेन द थिंग्स सेटल डाउन एंड आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी, तो मुझे लगा नहीं यार मैंने सही किया था. तो इनिशियली आप लोगों को भी वो खुद से अंदर से गिल्ट फील होगा, लेकिन स्टार्ट कॉम्पनसेटिंग. जैसे मैं मेरी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने लग गई, बिकॉज आई न्यू कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है उसके साथ स्पेंड करने के लिए, तो मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग गई. तो वैसे ही आपने अगर किसी को ना बोला है किसी चीज के लिए,
गिव देम सम अदर थिंग। ओके, ये वाली चीज ना है क्योंकि ये मेरी नॉन नेगोशिएबल है, बट लेट्स मेक इट वर्क। कुछ और करते हैं इसके बदले में, जिसमें हम दोनों के लाइक विन विन हो। और जब भी हम ऐसे कम्युनिकेट करके चीजों को सॉल्व करेंगे, तो दैट विल रिजल्ट इन पीस ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ भी टेंशन नहीं होगा और यहाँ भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन आपने यस 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 बोल दिया ना, तो ये वाली चीज तो ऐसे चली जाएगी नीचे, ये वाले लोग ऊपर चलते जाएंगे, एंड देन फिर आप खाली हो जाओगे। तो ये नहीं करना है, हमें ऐसे बैलेंस रखना है। Guys, so hope you enjoyed this boundary settings and importance of boundary setting session. And Very much. if you want to work in future with me, I am coming up with a five weeks course wherein I'll be covering different topics, and that will be even with further details, with further activities included inside it, and with accountability from my side to you, towards you. So in case you are interested, I am giving you this offer that we will be starting it from next month, February first week. So all the details will be shared, and we can get on a clarity call. आपको पूछना है कुछ भी इससे related, कि what all things will be covered, how you are going to take the further sessions, and how it will benefit you. Then you can book a clarity call with me. I'll be available for you. And one more thing, कि if you like this session, then please share your major takeaways कि आपको क्या पसंद आया। I would like to know कि आप क्या implement करने वाले हो इसमें से, that will help you set boundaries for your peace. That is very important, क्योंकि आप जब उसे लिखते हो ना, it goes in your subconscious brain. And ये as a student मैं करती हूँ when I learn from my teachers, कि I make the this a point कि उसमें से मुझे जो जो चीजें implement करनी है या जो जो चीजें मैंने सीखी है, I make a note of it. And then I go back to it, okay क्या सीखा था, how to implement and all that, वो जो उन्होंने सिखाया है, then I start implementing one by one. हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही करना होता है. दैट्स व्हाई आई इवन आस्क यू कि बाउंड्री सेटिंग ऑल्सो यू मेक इट अ पॉइंट कि आप एकदम से बड़ी बड़ी बाउंड्रीज नहीं सेट करो. स्टार्ट विद द स्मॉल वंस, देन मीडियम, देन गो फॉर द हायर लेवल्स. ओके, so yeah, I was saying ki come on one-on-one clarity call with me, and I'll share you all the details of the further program in case you are interested to go ahead and work with me. Thank you so much, guys. Thank you for your time. Thank you, Jayashri, Ashna, Karishma, Atulya. Thank you for joining in. Thank you so much, Anita.